را کے چیف جی ڈی پانڈے پر اپنا اثر رسوخ جمانے اور اس کے بھرپور اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے اس کی اکلوتی بیٹی مینا کشی کے ذریعے مجھے جو کرشمہ یا شعبدہ دکھانا تھا، اس کی طاقت مجھے چندریکا کے ذریعے حاصل ہو گئی تھی۔ کریم بھائی نے رات کو جاتے وقت کہا تھا کہ میں کل رات آؤں گا۔ تم اس نقطے پر غور کر رکھو کہ مینا کشی پر کس طریقے سے اپنا اثر جما سکتے ہو۔ کریم بھائی بھی یہی چاہتا تھا کہ میں مینا کشی کے ذریعے اس کے باپ اور را کے کشمیر پاکستان افیئرز کے چیف مسٹر جی ڈی پانڈے تک رسائی حاصل کروں، کیونکہ پانڈے کو اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ کیونکہ اب مینا کشی کو اپنے قبضے میں کرنے والا منتر میرے ہاتھ آ چکا تھا، تو مزید ایک دن انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ دن نکلنے کے بعد کریم بھائی کو اس کے خفیہ نمبر پر فون کر کے اسے یہاں بلاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں نے مینا کشی تک رسائی حاصل کرنے کا ایک طریقہ سوچ لیا ہے۔ اچانک خیال آیا کہ چندریکا نے مجھے اپنے بارے میں کسی کو کچھ بتانے سے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ اس نے شروع ہی میں مجھے خبردار کر دیا تھا کہ اگر میں نے اس کے بارے میں کسی کو کچھ بتایا تو میرے سارے فائدے نقصان میں بدل جائیں گے۔ وہ اپنی اور میری ملاقاتوں کو راز میں رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے بھی سوچا کہ مجھے کسی کو چندریکا کے بارے میں کچھ بتا کر خواہ مخواہ اپنا نقصان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے تو آم کھانے سے غرض ہے اور آم لا کر چندریکا نے میری جھولی میں ڈال دیے تھے۔ میں نے کریم بھائی کو صبح ٹیلی فون کر کے بلانے کا خیال دل سے نکال دیا۔ وہ سارا دن میں نے بڑی بے چینی سے گزارا۔ رات ہوئی تو کریم بھائی آ گیا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے پوچھا کہ میں نے مینا کشی پر اثر رسوخ جمانے کا کوئی طریقہ سوچا ہے کیا؟ میں نے یوں ہی مگر بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، کریم بھائی، ایک طریقہ میں نے سوچ لیا ہے۔ طریقہ یہی ہے کہ میں جین دھرم کا سوامی بن کر اس کے پاس کلب میں یا جہاں وہ شام کے وقت اپنی سہیلیوں یا دوستوں کے ساتھ بیٹھتی ہے جا کر اسے ملوں گا اور اپنی باتوں سے اس کے دل کو اپنے قبضے میں کر لوں گا۔ کریم بھائی مسکرانے لگا۔ تم کمانڈو ہو، کوئی جادوگر یا نقلی کرامتیں دکھانے والے سادھو جوگی نہیں ہو۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ مینا کشی ماڈرن ہندوستان کی اونچی سوسائٹی کی پڑھی لکھی ماڈرن لڑکی ہے۔ اس نے ہر گھاٹ کا پانی پیا ہے۔ وہ امریکہ میں بھی 4 سال گزار چکی ہے۔ وہ اتنی آسانی سے تمہاری باتوں سے متاثر نہیں ہوگی۔ لیکن جو مجھے معلوم تھا وہ کریم بھائی کو معلوم نہیں تھا۔ جو منتر مجھے چندریکا سکھا گئی تھی، مینا کشی کے جو راز مجھے چندریکا بتا گئی تھی، ان کی بھی کریم بھائی کو کوئی خبر نہیں تھی۔ اگر میں اسے چندریکا کی باتیں بتا دیتا تو کریم بھائی کہتا کہ ابھی جا کر مینا کشی سے ملاقات کرو، مگر میں مجبور تھا۔ کریم بھائی کو چندریکا کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے کہا، کریم بھائی، میں نے ہندو دھرم کے تمام فرقوں کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ میں نے ہندو دھرم کے بارے میں بہت علم حاصل کیا ہوا ہے۔ مجھے 4 ویدوں اور اپنشدوں اور سوتروں کا بھی علم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور جن دھرم کے بارے میں تو میں نے گہرا مطالعہ کیا ہوا ہے۔ تم بے فکر رہو، میں انشاءاللہ اس مشن میں ناکام نہیں ہوں گا۔ میری یہ پہلی کمانڈو مہم کامیابیوں سے ہمکنار ہوگی۔ کریم بھائی مجھے اس قدر اور اعتماد دیکھ کر حیران سا ضرور ہوا، مگر یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ میرے ہاتھ ایک ایسا خفیہ منتر آ گیا ہے کہ جس کے پھونکنے سے میرے انتہائی اہم کمانڈو مشن کا پہلا دروازہ کھل جائے گا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے،
अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। मीनाकशी के बारे में मैंने अपने ज़राए से सब कुछ मालूम कर लिया है कि उसकी मसरूफियात क्या क्या हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, मीनाकशी को डांस और म्यूजिक का बड़ा शौक है और वो इस वक्त अहमदाबाद के मशहूर और ऊंची सोसाइटी के डांस सेंटर साराबाई डांस सेंटर में क्लासिकल डांस की तालीम हासिल करने जाती है। ये कोई डांस का सिर्फ स्कूल नहीं है, बल्कि ऊंची सोसाइटी की औरतों और अहमदाबाद के अमीर गुजराती सेठों और सरकारी अफसरों के नौजवान लड़कों का एक तरह से क्लब भी है। ये डांस सेंटर साराबाई मरहूम की बेटी रैना लेनी चलाती है। ये डांस सेंटर अहमदाबाद के बादशाह सुल्तान अहमद शाह गुजराती की मशहूर तारीखी मस्जिद के करीब ही वाक़ है। तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि अहमदाबाद का शहर सुल्तान अहमद शाह गुजराती ने आबाद किया था। मैं चाहूँगा कि तुम सुबह से यहाँ निकलकर सीधे अहमदाबाद में सयाहों के मशहूर होटल ट्राइडेंट होटल में जाकर अपने लिए कमरा ले लो। वहाँ तुम यही जाहिर करोगे कि तुम दिल्ली से जैन मंदिरों और गांधी जी के आश्रम की यात्रा करने अहमदाबाद आए हो। ये एक 5 स्टार होटल है, मगर तुम्हारे मिशन का तकाजा है कि तुम उसी होटल में जाकर क़याम करो। हाँ, 2 दिन ही क़याम करो। उसके लिए मैं तुम्हें कुछ रकम अपनी मुस्लिम कमेटी के फंड में से निकाल कर दे दूंगा। मुझे चूंकि अपने मिशन की कामयाबी पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने करीम भाई से कहा, करीम भाई, तुम मुझे सिर्फ 1 दिन 1 रात का होटल का खर्चा दे देना, उसके बाद सारा इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। वो गहरे गौर व फिक्र के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाता रहा, फिर बोला, मेरा ख्याल है तुम अपना लिबास यही सफ़ेद कुर्ता पाजामा और नेहरू जैकेट ही रखना। तुमने मीनाकशी को अपने लिबास से नहीं, बल्कि अपनी बातों और अपने जैन धर्म के आलमों वाली गुफ्तगू से मुतासिर करना है। हाँ, ये कपड़े ही ठीक रहेंगे। नहीं, मैं ऐसा ही एक नया जोड़ा सुबह अपने साथ लेता आऊंगा। कुछ देर बातें करने के बाद करीम भाई अगले रोज आने का वादा करके चला गया। मैं कुछ देर मीनाकशी से मुलाकात और उसके साथ अपनी अहम तरीन तारीखी मुलाकात के बारे में सोचता रहा, फिर सो गया। दूसरे रोज करीम भाई दिन के 10-11 बजे के करीब आ गया। उसके हाथ में शायद बैग था जिसमें मेरे लिए सफ़ेद खद्दर का पाजामा, कुर्ता और नई बादामी रंग की वास्केट थी। मैं नहा धोकर तैयार हो चुका था, फौरन नया जोड़ा पहन लिया। करीम भाई अपने साथ मीनाकशी की एक पासपोर्ट साइज की तस्वीर भी लाया था। उसने मुझे तस्वीर दिखाई और कहा, यह मीनाकशी की 1 माह पहले की उतरी हुई तस्वीर है। मुझे यकीन है तुम साराबाई डांस सेंटर में अब उसे पहचान लोगे। फिर उसने एक लिफाफा मुझे थमाते हुए कहा, इसमें 2000 रुपए के नोट हैं। ट्राइडेंट होटल के 24 घंटे सिंगल बेडरूम का किराया 800-900 रुपए के करीब है। बाकी रुपए तुम अपने पास रखना, तुम्हारे काम आएंगे। अगर मजीद रुपयों की जरूरत पड़े तो मुझे मेरे खुफिया टेलीफोन नंबर पर टेलीफोन कर देना, तुम्हें रुपए पहुंच जाएंगे। मैंने कहा, करीम भाई, उसकी नौबत नहीं आएगी, तुम बेफिक्र रहो। करीम भाई ने हैरान सा होकर मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है? तुम्हारे हाथ कोई खुफिया खजाना तो नहीं आ गया? मैंने हंस कर कहा,
کریم بھائی، میرا خفیہ خزانہ تو میرا اپنا اللہ پاک اور اس رسول پاک پر میرا ایمان ہے۔ میری یہ مہم اسلام اور پاکستان کی مہم ہے۔ میں اگر اپنے مشن میں ثابت قدم رہا تو اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میری ضرور مدد کرے گا۔ کریم بھائی بڑا خوش ہوا، کہنے لگا ماشاء اللہ، پاکستان کے ہر نوجوان کا یہی عقیدہ اور یہی عزم ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ اس قلعے کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنا کر قائم رکھنے میں ہی ہم ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی بقا ہے۔ اب اللہ کا نام لے کر اٹھو، میں تمہیں ٹرائیڈنٹ ہوٹل کے قریب اتار دوں گا۔ کریم بھائی کی پرانی مورس گاڑی کوارٹر کے عقب میں درختوں کے نیچے کھڑی تھی۔ ہم گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی شہر کی طرف چل پڑی۔ آسمان پر بادل بھی تھے اور کبھی کبھی دھوپ بھی نکل آتی تھی۔ فضا میں حبس تھا۔ گاڑی شہر کے مضافات میں سے نکل کر شہر کی گنجان آبادی والے علاقے میں آ گئی۔ یہاں کافی ٹریفک تھی، دکانیں کھلی تھی، زیادہ تر کپڑوں کی دکانیں تھیں۔ احمد آباد میں کپڑا بنانے کے بے شمار کارخانے تھے۔ یہ شہر شروع ہی سے پارچہ سازی کی صنعت کا بہت بڑا مرکز رہا تھا۔ احمد آباد ماڈرن شہر بھی تھا اور پرانا شہر بھی تھا۔ اس کے بازاروں میں ماڈرن اور قدیم دونوں زمانوں کا امتزاج تھا۔ ایک طرف اگر بجلی کی لوکل ٹرینیں چلتی تھیں اور دوسری طرف بازاروں میں بیل گاڑیاں بھی چلتی تھیں۔ اگر شہر کے فیشن ایبل علاقے میں ہائی رائز بلڈنگیں تھیں تو شہر کے اندر نیم روشن گلی کوچوں میں پرانے مکان اور پرانے جین مندر بھی تھے۔ مگر اس شہر کی اسلامی عہد میں تعمیر شدہ تاریخی عمارتیں اور مسجدیں سیاحوں کو سب سے زیادہ اپنی طرف کھینچتی تھیں۔ ان میں قطب شاہی کے عہد کی مشہور تالاب اور ستونوں والی مسجد تھی۔ شہر کے مرکز میں کنکر کنکریاں نام کی مشہور جھیل اور پارک واقع تھی، جسے سلطان قطب الدین نے اپنے عہد میں بنوایا تھا۔ مغل عہد حکومت میں اس جھیل کے گردا گرد ایک جنگل ہوتا تھا جہاں شہنشاہ جہانگیر شکار کھیلنے آتا تھا۔ کنکر کنکریاں جھیل کو اب بڑا ماڈرن کر لیا گیا ہے اور اس میں پیڈل سے چلنے والی کشتیاں چلتی ہیں۔ جھیل کے ارد گرد سنگ مرمر کی 12 دریاں ابھی تک اپنی شان و شکوہ کے ساتھ موجود ہیں اور اسلامی عہد کے جاہ و جلال کی نمائندگی کرتی ہیں۔ یہاں شاہی مہمانوں کے نہانے کے لیے ان 12 دریوں کے نیچے باولی کی شکل میں ایک شاہی حمام بھی بنا ہوا ہے، جس کے اب صرف آثار ہی باقی رہ گئے ہیں۔ جھیل کی ایک جانب ہمارے لاہور کے شالامار باغ کی طرز کا ایک باغ بھی ہے۔ انڈیا کے اس تاریخی شہر احمد آباد میں رہنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس شہر کے کلچر پر اسلامی کلچر کی گہری چھاپ لگی ہوئی ہے۔ گجراتی زبان میں فارسی اور عربی کے بے شمار الفاظ بولے جاتے ہیں اور یہاں مسلمان بادشاہوں کے زمانے کے کئی تاریخی عمارتیں اور مساجد موجود ہیں۔ کریم بھائی کی مورس گاڑی اب شہر کے گنجان علاقے سے نکل کر شہر کے فیشن ایبل علاقے میں داخل ہو چکی تھی۔ گجراتی عورتیں ساڑیوں کے علاوہ شلوار قمیض میں بھی ملبوس تھیں۔ نوجوان لڑکیوں نے پتلون قمیض بھی پہن رکھی تھی۔ کئی لڑکیاں سکوٹر چلاتی بھی نظر آئیں۔ ہماری گاڑی ایک کشادہ سڑک پر سے گزر رہی تھی جس کی ایک جانب کوٹھیاں اور بنگلے تھے اور دوسری جانب اونچی بلڈنگیں کھڑی تھیں۔ پھر ایک پارک آ گیا۔ کریم بھائی نے اس پارک کے پیچھے آ کر گاڑی ایک طرف کھڑی کر دی۔ ٹرائیڈنٹ ہوٹل اس پارک کے جنوبی گیٹ کے بالکل سامنے ہے۔ اب تم وہاں جاؤ گے اور اپنے مشن کا آغاز کرو گے۔ سارا بائی ڈانس سینٹر کا حدود اربع اور ایڈریس میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ وہاں تم شام ہونے کے بعد جاؤ گے اور یہ ظاہر کرو گے کہ تم اپنی کسی رشتہ دار لڑکی کو وہاں ڈانس کی تعلیم دلوانا چاہتے ہو۔ مینا کشی وہاں شام کو ضرور آتی ہے، اسے تم پہچان لو گے۔ اس کے بعد تمہاری ذہانت اور چرب زبانی کا امتحان شروع ہوگا۔ خدا حافظ۔
میں گاڑی سے نکل کر خاموشی سے پارک کے جنوبی گیٹ کی طرف چل پڑا۔ کریم بھائی گاڑی موڑ کر وہیں سے واپس چلا گیا۔ دن کے 11 ساڑھے 11 بجے کا وقت ہوگا۔ پارک میں بچے فٹ بال وغیرہ کھیل رہے تھے۔ میں پارک کی جنگلے والی دیوار کے ساتھ ساتھ فٹ پاتھ پر چلا جا رہا تھا۔ میرے بائیں ہاتھ کی کلائی پر جین دھرم کا منگل سوتر بندھا ہوا تھا۔ ماتھے پر جین دھرم کا سفید تلک لگا تھا۔ لباس سفید کھدر پاجامے کا تھا۔ پاؤں میں کولہا پوری چپل تھی۔ میں بالکل جینی ہندو لگ رہا تھا۔ جنوبی گیٹ پر آ کر میں نے سامنے نگاہ ڈالی۔ کشادہ سڑک کی دوسری جانب ایک 3 منزلہ 5 سٹار ہوٹل کی ماڈرن بلڈنگ کھڑی تھی۔ میں سڑک کراس کر کے ہوٹل کے گیٹ میں سے گزرتا ہوا اس کی لابی میں آ گیا۔ باہر کچھ گاڑیوں اور ایک ٹورسٹ بس کھڑی تھی۔ لابی کا دروازہ شیشے کا تھا۔ اندر کی فضا کولنگ کی وجہ سے ہلکی ہلکی خنک تھی۔ فضا میں رنجنی گنتا کے پھولوں کی دھیمی دھیمی مہک رچی ہوئی تھی۔ ان پھولوں کے بڑے بڑے گلدستے لابی کے کونوں میں کرسٹل کی میزوں پر سجے ہوئے تھے۔ کاؤنٹر پر ایک لڑکی فون سن رہی تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ لڑکی نوجوان تھی۔ بالوں کے جوڑے میں موتیے کے سفید پھول سج رہے تھے۔ اس نے سبز کناروں والی زرد رنگ کی ریشمی ساڑی پہن رکھی تھی۔ یہ دونوں رنگ گجرات کاٹھیاوار کے خاص رنگ ہیں۔ لڑکی نے فوراً ٹیلی فون رکھ دیا اور میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے انگریزی میں کہا، میں کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں دلی سے احمد آباد کے تاریخی مندروں کی یاترا کو آیا ہوں۔ میرا نام داس ورتن ہے۔ میں 2-3 دن ہوٹل میں قیام کروں گا۔ لڑکی نے بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ ایک کارڈ میرے آگے رکھ دیا۔ پلیز اس کارڈ پر اپنا نام اور دلی کا ایڈریس لکھ دیں۔ میں نے کارڈ پر اپنا نام داس ورتن اور دلی کا ایک ذیلی ایڈریس لکھ دیا۔ اس نے اپنے رجسٹر پر بھی میرے نام کا اندراج کیا اور 800 روپے کی ادائیگی کے لیے کہا۔ میں نے اسی وقت ادائیگی کر دی۔ لڑکی نے ایک ہوٹل بوائے کو اشارہ کیا اور چابی اس کو دے کر کہا، صاحب کو اوپر ان کے کمرے میں پہنچا دو۔ لڑکے نے مجھ سے میرے سامان کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے کہا، میں ٹورسٹ ہوں، انڈین ٹورسٹ، میرے پاس کوئی سامان نہیں۔ لڑکی مسکرا دی۔ میں ہوٹل بوائے کے ساتھ لفٹ میں سوار ہو کر ہوٹل کی دوسری منزل پر آ گیا۔ میرا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ سنگل بیڈ روم والا کمرہ تھا۔ مختصر مگر خوبصورت فرنیچر سجا تھا۔ ٹیلی فون بھی لگا تھا۔ میں نے ہوٹل بوائے کو 5 روپے ٹپ دیے اور کہا، ابھی میں سوامی نارائن جی کے مندر جا رہا ہوں، 1 گھنٹے بعد آ کر بھوجن کروں گا۔ میں جینی ہوں، صرف دہی اور سبزی کھاؤں گا۔ ہوٹل بوائے نے کہا، اوکے سر۔ میں نے اس کے جانے کے بعد کمرے کا جائزہ لیا۔ کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر دیکھا۔ یہاں سے سڑک اور پارک کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ باتھ روم میں جا کر صابن سے ہاتھ صاف کیے اور کمرے کو تالا لگا کر نیچے لابی میں آیا۔ چابی کاؤنٹر پر دی اور باہر آ کر ٹیکسی لی اور اسے لے کر بازار چلنے کو کہا۔ لا بازار احمد آباد شہر کا کاروباری سنٹر ہے اور ہمارے لاہور کے انارکلی بازار کی طرح ہے۔ یہاں آ کر میں نے ایک بریف کیس اور کچھ دوسرا ضروری سامان خریدا اور واپس ہوٹل میں آ گیا۔ دوپہر کو بادل نخواستہ سبزی خوروں والا کھانا کھایا اور پھر تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ جب اٹھا تو دن کی روشنی ماند پڑ چکی تھی اور شام کی آمد تھی۔ میں نے غسل کیا، ماتھے پر چھوٹی ڈبی کھول کر جینی تلک لگایا، بریف کیس میں سے نیا سفید رومال اور نئی خریدی ہوئی چھوٹی ڈائری نکال کر واسکٹ کی جیب میں رکھی۔ دوسری جیب میں 100 روپے کے 2 نوٹ ڈالے اور ہوٹل کی لابی سے نکل کر ٹیکسی سٹینڈ پر آ گیا۔
अब मैं सारा बाई डांस सेंटर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। मैंने टैक्सी ली और उसे सारा बाई डांस सेंटर चलने को कहा। टैक्सी सड़क पर एक तरफ रवाना हो गई। शाम का सरमई धुंधलका सड़क के दरख्तों को अपनी लपेट में ले रहा था। सड़क की बत्तियां रोशन हो गई थीं। साराबाई डांस सेंटर पहुंचते पहुंचते शाम गहरी हो चुकी थी। साराबाई डांस सेंटर सड़क से हटकर एक 2 मंजिला खूबसूरत कोठी में कायम था। गेट पर गुजराती और अंग्रेजी जबान में सेंटर के नाम का बोर्ड लगा था। गेट के पास स्टूल पर एक गोरखा चौकीदार बैठा था। मुझे देखकर वो उठ खड़ा हुआ। मैंने उससे पूछा कि रेनालेनी देवी अंदर ही हैं? गोरखे ने कहा, जी हाँ। मैं कोठी के बरामदे की तरफ बढ़ा जहां खूब रोशनियां हो रही थीं। कोठी के बागीचे में भी रोशनी थी। दरमियान में शिव देवता की मूर्ति लगी थी जिसमें उसे डांस करते दिखाया गया था। 2 गाड़ियां बरामदे की एक जानिब खड़ी थीं। बरामदे में छोटे से खूबसूरत काउंटर के पीछे एक गुजराती लड़की बैठी थी। उसके करीब ही गुलदान में रजनीगंधा के फूल सज रहे थे। मैंने करीब जाकर कहा, मेरा नाम दासवर्तन है। मुझे देवी रेनालेनी जी से मिलना है। मैंने ये जुमले अंग्रेजी जबान में अदा किए थे। लड़की ने भी बड़ी सादा मगर खूबसूरत अंग्रेजी में मुझसे पूछा कि मैं रेनालेनी देवी से किस लिए मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं अपनी भांजी को यहाँ डांस सिखाना चाहता हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ। लड़की ने कहा, अंदर वेटिंग रूम में तशरीफ रखें। मैं देवी रेनालेनी को आपके बारे में इत्तला करती हूँ। मैं ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। वहाँ पहले से 2 औरतें और एक उधेड़ उम्र मर्द बैठा था। ड्राइंग रूम की दीवारों पर इंडिया के मशहूर डांसरों की पेंट की हुई तस्वीरें लगी थीं। कार्नस के ऊपर दोनों जानिब शिव देवता के डांस के पोज वाले कांसी के मुजस्मे रखे हुए थे। कार्नस के ऊपर किसी खूबसूरत मगर जरा ज्यादा उम्र की औरत की आयल में पेंट की हुई तस्वीर लगी थी। इस औरत के जूड़े में भी मोतिये के फूल सजे हुए थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, नाक सतवां था और वो थोड़ा सा मुस्कुरा रही थी। तस्वीर के नीचे अंग्रेजी में कुछ लिखा था जो दूर से मैं पढ़ नहीं सकता था। ये इस डांस सेंटर की मालका रेनालेनी देवी की ही तस्वीर हो सकती थी। एक दुबली पतली मगर खुश शक्ल लड़की ड्राइंग रूम के अंदर की जानिब खुलने वाले दरवाजे का पर्दा हटाकर आई। उसने मेरे सामने वाले सोफे पर बैठी हुई खवातीन और उनके मर्द को इशारे से बुलाया। तीनों अंदर चले गए और उसे कुछ देर के बाद तबले की थाप और हारमोनियम की आवाज आने लगी। फिर घुंघरुओं की हल्की हल्की झनकार भी सुनाई देने लगी। 1 आध मिनट के बाद ये आवाजें रुक गईं। मैं सोफे पर बड़े सुकून से बैठा रहा। दरवाजे का पर्दा हटा, दोनों औरतें और मर्द अंदर से निकले और गुजराती में आपस में बातें करते ड्राइंग रूम से बाहर निकल गए। उसके साथ ही वही लड़की एक बार फिर आई। उसने अंग्रेजी में मुझसे पूछा कि क्या दासवर्तन मेरा ही नाम है। मैंने सोफे पर से उठते हुए कहा, हाँ, मैं ही दासवर्तन या दासवर्तन हूँ। लड़की ने कहा, प्लीज फॉलो मी। वो मुझे एक नीम रोशन राहदारी में से गुजार कर एक बड़े कुशादा और रोशन कमरे में ले गई, जहां कालीन बिछे थे। एक तरफ तख्त पर गाव तकिए लगे थे। तानपुरे और तबलों की जोड़ियां भी मौजूद थीं। एक बूढ़ा आदमी हारमोनियम बजा रहा था और एक लड़की रक्स करने के बाद घुंघरू उतार रही थी। बड़े कीमती सोफे थे, दीवारों पर पर्दे लटक रहे थे।
जा बजा कृष्ण और गोपियों और शोभारोती की रक्स के अंदाज की तस्वीरें लगी थीं। कोनों में भी शिव देवता के कांसी के मुजस्मे खड़े थे। लड़की ने एक सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप बैठिए, देवी जी अभी आती हैं। जो लड़की घुंघरू उतार रही थी उसने घुंघरुओं को उतारकर चूमा माथे से लगाया और हारमोनियम बजाने वाले बूढ़े के हवाले करके बूढ़े के घुटनों को हाथ लगाकर उसे कानों को हाथ लगाया और हाथ जोड़े पिछले कदमों कमरे से निकल गई। हारमोनियम बजाने वाले बूढ़े ने मेरी तरफ बिल्कुल तवज्जो न दी और धीमे सुरों में हारमोनियम बजाता रहा। मैंने अपने ऊपर वही मुतकब्बराना कैफियत तारी कर ली थी जो एक नकली पीर अपने किसी ज़ईफ़ुल एतिकाद मुरीद के घर जाकर अपने ऊपर तारी कर लेता है। मैं बड़ी शान से गर्दन उठाए बैठा बूढ़े को हारमोनियम पर उंगलियां चलाते देख रहा था। इतने में अकबी दरवाजे का रेशमी पर्दा हटा और एक गोरे रंग की भरे भरे बदन वाली औरत अंदर दाखिल हुई। उसके लंबे बाल शानों पर मोतिये और रजनीगंधा के फूलों के हारों से बंधे हुए थे। कान में नीले रंग के पत्थर चमक रहे थे। गले में भी उसी रंग के पत्थरों की जोड़ी थी। उसने हल्के नीले रंग का ब्लाउज और गहरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। बाल के नीचे उसका गोरा बदन साफ नजर आ रहा था। ये कोई बात नहीं थी। इंडिया में औरत इसी तरह लिबास पहनती है और ब्लाउज के नीचे नाफ से जरा ऊपर तक उनके पेट होते हैं। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। मैंने उसे पहचान लिया। ये वही औरत जिसकी ड्राइंग रूम में तस्वीर लगी थी। उम्र उसकी 30 और 35 वर्ष के दरमियान होगी। उसने एक शान बेनियाजी से मेरी तरफ निगाह डाली और मुझसे कोई बात किए बगैर हारमोनियम बजाने वाले बूढ़े से मुतवज्जे होकर कहा, महाराज आप ऊपर वाले कमरे में जाएं, स्टूडेंट लड़कियां आ गई होंगी। महाराज हारमोनियम बंद करके उठे, औरत को नमस्कार किया और बाहर निकल गया। अब औरत ने जो यकीनन रेनालेनी देवी ही थी मेरी तरफ देखा। चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट सजाए वो मेरे सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गई। नकली मुस्कुराहट फौरन चेहरे से गायब हो गई। उसने अंग्रेजी में मुझसे पूछा, आप अपनी कजन को डांस सेंटर में एडमिट कराना चाहते हैं? मैंने अपने चेहरे को पत्थर की तरह संजीदा बनाया हुआ था। मैंने भी अंग्रेजी में जवाब दिया, हाँ मैडम, लेकिन आपकी कजन तो दिल्ली में रहती है। मैंने कहा, वो अहमदाबाद अपनी मासी के पास आकर रह लेगी। मगर मैडम आपने अपना तारुफ नहीं कराया। इस औरत ने जरा सा चौंक कर मेरी तरफ देखा, जैसे उसे मेरा इस तरह बेतकल्फी से बात करना उसे अच्छा न लगा हो। कहने लगी, मैं रीना लेनी देवी हूँ, साराभाई डांस सेंटर की मालका। मैंने भी बेनियाजी का इजहार करते हुए कहा, क्या मेरी कजन को आपके यहाँ दाखिला मिल जाएगा? रेना लेनी देवी को ये बात भी महसूस हुई थी कि मैंने उस बात को कोई अहमियत नहीं दी थी कि वो डांस सेंटर की मालका है। उसका बोलने का अंदाज बता रहा था कि वो मुझसे चिढ़ सी गई है। अपनी साड़ी के पल्लू को अपने घुटनों के ऊपर करते हुए उसने बेजारी के साथ मेरी तरफ देखा और कहा, सॉरी सर, इस वक्त सेंटर में किसी नए स्टूडेंट के दाखिले की गुंजाइश नहीं है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, एक बार फिर गौर कर लीजिए। रीना लेनी भी बड़ी मिजाजदार औरत थी।
उसने भी मेरे जैनी भक्तों वाले लिबास को कोई अहमियत नहीं दी थी। दरअसल गुजरात के शहरों में इस हुलिये के जैनी भगत आमतौर पर देखने में आते थे। जरा तुर्श लहजे में कहने लगी, सर, मैंने गौर करके ही आपको बताया है, आई एम सॉरी। अब मैंने अपने रवैये में थोड़ी नरमी पैदा कर ली। मेरी हिकमत अमली का तकाजा भी यही था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, बात यह है कि मेरी कज़न को आपके सेंटर में रक्स की तालीम हासिल करने का बेहद शौक है। वो आपकी ज़बरदस्त फैन है। अगर आपने उसे दाखिल ना किया तो उसे ज़बरदस्त सदमा होगा। मेरे नरम लहजे का रीना लेनी पर असर हुआ। वो भी थोड़ा सा मुस्कुराई। कहने लगी, आप 2-1 दिन इंतजार कर लें। आप कहाँ ठहरे हुए हैं? मैंने उसे अपने होटल का बताया तो वो उससे भी मुतासिर हुई, क्योंकि ट्राइडेंट होटल महंगा 5 स्टार होटल था। सर को इस बात के अंदाज में हिलाते हुए बोली, आई सी। मुझे मीनाकशी का इंतजार था। चंद्रिका ने कहा था कि जिस रात तुम साराभाई दास सेंटर जाओगे, मीनाकशी उसी रात वहां जरूर आएगी। और चंद्रिका की बातें सही हो रही थीं। मैंने रीना लेनी से पूछा कि क्या वो स्टूडेंट्स को यहीं रक्स की तालीम देती हैं। उसने कहा, क्लासेस ऊपर वाले हॉल कमरे में लगती हैं। ऊपर वाले कमरे से तबले, हारमोनियम की हल्की हल्की आवाजें आने लगी थीं। तब मैंने रीना लेनी देवी को अपने बारे में बताया कि मैं दिल्ली के कास्ट हिंदू घराने में पैदा हुआ था। बचपन में माता पिता वफात पा गए। मेरे अंकल ने मेरी परवरिश की। बनारस यूनिवर्सिटी से एमए फिजिक्स में किया। फिर 4 साल अमेरिका में तालीम हासिल की, लेकिन बचपन से तबीयत जैन धर्म की तरफ लगा हुआ था। फिर मैंने नौकरी छोड़ दी और जंगलों में निकल गया। 4 वर्ष तक जंगलों में साधु संतों के साथ रहा। हिंदू और जैन धर्म का ज्ञान हासिल किया और अब अपनी जिंदगी जैन मत के प्रचार के लिए वक्फ कर दी है। उसके बाद मैंने योगा, कर्मकांड, मूसीकी, रक्स, 4 वेदों, अपशुओं और हिंदू देवी देवताओं के बारे में अंग्रेजी में ऐसी बातें की कि रीना लेनी पर उसका बहुत असर हुआ। अब वो मेरी तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हो गई थी और मेरी हर बात को बड़े गौर से सुनने लगी थी। यही मैं चाहता था। वो मुझे ऊपर वाले हॉल कमरे में ले गई, जहां लड़कियां महाराज से डांस की तालीम हासिल कर रही थीं। तानपुरा छिड़ा हुआ था। हारमोनियम पर लहर राब बज रहा था और 4-5 लड़कियां साड़ियों के पल्लू पेट के साथ लपेटे कथक रक्स कर रही थी। मैंने रीना लेनी से पूछा, क्या तुम भारतनाट्यम रक्स की तालीम भी देती हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं महाराज, भारतनाट्यम रक्स ही तो असल हमारे भारतवर्ष का रक्स है। कथक रक्स का तो मुगल बादशाहों ने रवाज दिया था। वो ठीक कह रही थी। कथक रक्स खैर से मुसलमान बादशाहों ने औरंगजेब के जमाने के बाद इजाद किया था और इसी रक्स ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत को डबो दिया था। मैंने रक्स करती लड़कियों को बड़े गौर से देखा। उनमें अहमदाबाद में राज के चीफ मिस्टर पांडे की बेटी मीनाकशी नहीं थी। मीनाकशी का चेहरा मुझे अच्छी तरह याद था। करीम भाई ने मुझे उसकी फोटो दिखाई हुई थी। चंद्रिका ने कहा था कि वो जरूर आएगी। मुझे वहां रुककर मीनाकशी का इंतजार करना था। थोड़ी देर गुजरी होगी कि एक दराज कद की खूबसूरत शक्ल सूरत वाली गंदमी रंग की लड़की बड़ी खूबसूरत
रेशमी साड़ी पहने आल कमरे में दाखिल हुई। उसने सबसे पहले हारमोनियम पर बैठे हुए बूढ़े को नमस्कार कहकर उसके घुटनों और पांव को छुआ। फिर हमारे करीब आई और रेना लेनी देवी को नमस्कार कहकर उसके घुटनों को हाथ लगाया और मुस्कुराते हुए बोली। वो अंग्रेजी में बात कर रही थी। मैडम, सॉरी, आज मुझे देर हो गई। असल में मेरी अपनी गाड़ी की चाबी कहीं गुम हो गई थी। मैं डैडी की गाड़ी में आई हूँ। ये मीनाकशी थी, मैंने उसे पहचान लिया था। मैं मीनाकशी की तरफ देख रहा था और दिल में कह रहा था मीनाकशी देवी, बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि तुम मेरे घुटनों को भी हाथ लगाया करोगी। मीनाकशी ने मेरी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी थी। वो रेना लेनी से बातें कर रही थी। सोफे पर उसके पास बैठी थी और अपने बालों को सर के पीछे बांध रही थी, जैसे रक्स करने की तैयारी कर रही हो। अचानक मुझे लोबान की तेज खुशबू आई। ये खुशबू हवाई मखलूक और मेरी फर्जी पत्नी चंद्रिका के लिबास से आया करती थी। मैंने यूं ही दाईं तरफ देखा तो चौंक कर रह गया। चंद्रिका मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी। उसने मुझे हाथ बांधकर खामोशी से नमस्कार किया और फिर अपनी बंद मुट्ठी मेरी बास्केट की जेब में डाल दी। मीनाकशी बदस्तूर रेना लेनी देवी से बातें कर रही थी। लड़कियां रक्स में मसरूफ थीं। किसी ने चंद्रिका को नहीं देखा था। मालूम हुआ कि सिवाय मेरे उसे दूसरा कोई नहीं देख रहा। चंद्रिका कहने लगी, मैंने तुम्हें कहा था कि मीनाकशी आज रात जरूर आएगी। देख लो, वो आ गई है। उसके बारे में मैंने जो बातें तुम्हें बताई हैं उन्हें याद रखना। मेरी किसी बात का आगे से जवाब ना देना, क्योंकि यहाँ सिवाय तुम्हारे ना तो कोई मुझे देख रहा है और ना मेरी आवाज ही सुन रहा है। मीनाकशी की गाड़ी की चाबी मैंने गुम की थी। वो मैंने तुम्हारी सदरी की जेब में डाल दी है। तुम मीनाकशी को ये चाबी देकर उस पर इतना असर जरूर डाल सकते हो कि वो उसके बाद तुम्हारी हर बात को गौर से सुने। मैं चंद्रिका की किसी बात का जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। अगर मैं बोलता तो वो सब हैरान होकर मुझे दीवाना समझने लगते कि मैं किससे बात कर रहा हूं। चंद्रिका कहने लगी, अब मैं तुम्हारी नजरों से भी गायब हो जाती हूं ताकि तुम पूरी तवज्जो से अपने मंसूबे पर अमल कर सको, मगर मैं यहां मौजूद होंगी। फिर उसने गहरा सांस भरा, मेरी तरफ झुकी। लोबान की खुशबू तेज हो गई और चंद्रिका ने अपना रुखसार मेरे गाल के साथ लगाकर बड़े जज्बाती लहजे में कहा, मेरे स्वामी, मेरे पति देव, बहुत जल्द हमारे जिस्मों का भी मिलाप होने वाला है। इस कम वक्त हवाई मखलूक का जिस्म आम जिंदा औरतों के जिस्म ऐसा हो चुका था। वो मेरी नजरों से गायब हो गई। मैंने बास्केट की जेब में हाथ डाला तो मेरी उंगलियां 2-3 चाबियों से टकराईं, जो एक छल्ले में परोई हुई थीं। ये मीनाकशी की गाड़ी की चाबियां ही हो सकती थीं। चंद्रिका ने बड़ा अच्छा तुर्क का पता मुझे दे दिया था। रेना लेनी देवी मीनाकशी से बातें कर रही थी। फिर उसने मीनाकशी से मेरा बड़े अच्छे अल्फाज में तारुफ करवाया। मीनाकशी ने रस्मी अंदाज में मेरी तरफ देखकर नमस्कार किया। उस पर मेरी शख्सियत का कोई असर नहीं पड़ा था। इंडिया में इल्म मौसीकी और रक्स और हिंदू देवी देवताओं और 4 वेदों के इल्म जानने वालों की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद मीनाकशी भी रक्स करती लड़कियों में शामिल हो गई।
अब लड़कियों ने कथक रक्स की बजाय भारतनाट्यम रक्स के तोड़े नाचने शुरू कर दिए थे। रीना लेनी देवी मेरे पास बैठी उस रक्स की और रक्स सिखाने वाले महाराज की तारीफ करती जा रही थी। मैं मामूली दिलचस्पी के साथ लड़कियों को रक्स करते देख रहा था। मैं उसी वक्त के इंतजार में था कि कब रक्स की तालीम खत्म हो और मीनाकशी से मुझे बात करने का मौका मिले। 15-20 मिनट के बाद ब्रेक हो गई। लड़कियां कमर के गिर्द बनते हुए साड़ियों के पल्लू खोलती, बालों को चेहरों पर से हटाती एक तरफ जाकर बैठ गईं। मीनाकशी रीना लेनी के पास आकर बैठ गई। अगरचे हाल कमरे में हल्का एयर कंडीशन लगा हुआ था, मगर फिर भी मीनाकशी के चेहरे पर रक्स करने की वर्जिश से पसीने के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। अपने पर्स में से टिश्यू पेपर निकाल कर चेहरे के पसीने को उनमें जज़ब करने लगी। साथ साथ वो रीना लेनी से बातें भी करती जा रही थी। इतने में नौकरानी लड़की कोल्ड ड्रिंक्स ले आई। मैंने भी एक गिलास ले लिया। मीनाकशी सोफे से टेक लगाकर बैठ गई और बड़े सुकून से कोल्ड ड्रिंक्स घूंट-घूंट करके पीने लगी। रीना लेनी उठकर दूसरी लड़कियों के पास चली गई और उन्हें हाथों से नृत्य करके भारतनाट्यम रक्स के बारे में जरूरी बातें बताने लगी। मुझे मीनाकशी से बातें करने का मौका मिल गया। मैं उसी मौके के इंतजार में था। मीनाकशी मेरी तरफ बिल्कुल मुतवज्जे नहीं थी। मैं उसके लिए गैर दिलचस्प किस्म का एक अजनबी आदमी था। वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए रीना लेनी की तरफ देख रही थी। मैंने अंग्रेजी में मीनाकशी से बात शुरू करते हुए कहा, तुम बहुत जल्द डांस में बड़ा नाम पैदा करोगी। मीनाकशी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और थैंक यू कहकर दोबारा दूसरी लड़कियों की तरफ देखने लगी। वो यही समझी कि मैं भी दूसरे नौजवानों की तरह उसकी खुशामद कर रहा हूं। मैंने सोफे पर जरा सा उसकी तरफ झुकते हुए राजदारी के अंदाज में कहा, मैडम, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुमने अपनी गाड़ी की चाबियां कहां रखी थीं। मीनाकशी ने ताज्जुब के अंदाज में मेरी तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि तुम्हें मेरी गाड़ी की चाबियों से क्या दिलचस्पी हो सकती है। उसने रस्मी तौर पर कहा, नहीं, कहीं रख दी होंगी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर हिंदू देवताओं के अंदाज में आहिस्ता से अंग्रेजी में कहा, मगर मुझे मालूम है कि तुमने गाड़ी की चाबियां कहां रखी थीं और मैं वहां से तुम्हारी चाबियां उठाकर ले आया हूं। मीनाकशी खाली खाली नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जो उसके लिए एक अजनबी आदमी हूं, उसकी गाड़ी की चाबियों का बार बार क्यों जिक्र कर रहा हूं। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ अपनी वास्कट की जेब में डाला और चाबियां निकालकर उसके पास सोफे पर रख दी और कहा, यही तुम्हारी गाड़ी की चाबियां हैं ना? मीनाकशी ने चाबियों के गुच्छे को देखा और थोड़ा सा चौंक कर पीछे हट गई। फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए हैरत, एहतराम और खौफ के मिले जुले तसरात थे। मैंने कोने में बैठी हुई स्टूडेंट लड़कियों की तरफ देखते हुए बेनियाजी मगर बड़े बावकार अंदाज में मीनाकशी से अंग्रेजी में कहा, ये करिश्मा मैंने तुम्हें इसलिए दिखाया है कि मैं देवताओं का इशारा पाकर यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। तुम पर यह साबित करने के लिए कि मुझे देवताओं ने तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे पास भेजा है, ये करिश्मा दिखाना बड़ा जरूरी था। मेरे पास और भी कुछ ताकतें हैं।
मगर उन्हें वक्त आने पर जाहिर करूंगा। देवताओं ने मुझे बता दिया है कि तुम एक रोज हिंदुस्तान की बहुत बड़ी डांसर बनोगी। सारे प्रांतों में तुम्हारी शोहरत होगी, तुम्हारे चर्चे होंगे। मीनाकशी पर मेरे करिश्मे या शोभदाबाजी का असर जरूर हुआ था, मगर इतना असर नहीं हुआ था। शायद वो भी मुझे हिंदुस्तान के उन साधुओं की तरह समझ रही थी जो अपनी छोटी मोटी रूहानी ताकत का इजहार गुमशुदा चीजों को सामने लाकर करते हैं। वाकई इस किस्म की बाजीगरी और शोभदाबाजी इंडिया के साधुओं के एक तबके में आम पाई जाती थी, मगर मेरे पास अभी तुरप के कुछ और पत्ते भी थे। मैंने मीनाकशी की तरफ मुतवज्जे होकर धीमी आवाज में कहा, शायद तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं आया। शायद तुम भी मुझे भारतवर्ष के आम जोगी साधुओं की तरह समझती हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने जंगलों में शिव देवता की बड़ी तपस्या की है। ये इसी तपस्या का नतीजा है कि मैंने शिव देवता का कुर्ब और आशीर्वाद हासिल कर दिया है। मुझे चूंकि संसार का कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, इसलिए शिव देवता ने मुझे अपना दोस्त बना लिया और मुझे ये खुशखबरी देकर तुम्हारे पास भेजा जो मैंने तुम्हें सुना दी है। मीनाकशी ने अंग्रेजी में थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, देवता शिव जी ने मेरे बारे में तुम्हें क्या बताया है? उसके अंदाज से साफ लग रहा था कि वो मुझे ऐसा नौजवान समझ रही है जो इस कुर्ब हासिल करने के लिए झूठी मूठी रूहानी ताकत हासिल करके उसके पास आ गया और अब उस पर अपना असर डालने की कोशिश कर रहा है। मैंने अपने चेहरे पर जलाल के तसरात पैदा कर लिए। मीनाकशी की आंखों में आंखें डाल दी और बड़े ड्रामाई लहजे में मगर धीमी आवाज में कहा, अगर तुम ये पूछना चाहती हो कि शिव जी देवता ने मुझे तुम्हारे बारे में और क्या कुछ बताया है तो सुनो। तुमने साड़ी की पेटी कोट के नीचे आज सुर्ख रंग का जांगिया पहना हुआ है। सुनो, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी नाफ के नीचे एक फोड़े का छोटा सा उभार बन रहा है जिसके मुतालिक तुमने अभी तक अपनी लेडी डॉक्टर से भी बात नहीं की। और सुनो, मीनाकशी का रंग उड़ गया। उसने मेरे घुटनों पर हाथ रख दिया और इधर उधर देखकर सहमी हुई आवाज में बोली, प्लीज यहाँ ये बातें ना करें, प्लीज दूसरे कमरे में आ जाएं। वो मुझे साथ वाले कमरे में ले गई। ये एक मुख्तसर सा मगर खूबसूरत सा सजा हुआ कमरा था। दरमियान में गोल मेज के गिर्द कुर्सियां लगी थीं। उसने दरवाजा बंद किया और मेरे आगे हाथ बांधकर खड़े हो गई। प्लीज बैठ जाइए। मैं कुर्सी पर बैठ गया। वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। एक बात आपको भी बता दूं कि हिंदू औरत खा कितनी पढ़ी लिखी हो या जितना ही भी पढ़ लिख जाए, खा वो PhD की डिग्री हासिल करे, मगर वो अंदर से बेहद तोहम परस्त और जादू टोने ज्योतिष और उसी किस्म की दूसरी ज़ईफुल एतिकादी की परस्तार औरत होगी। ये तो हम परस्ती हिंदू औरत के खून के साथ मिली हुई होती है। मैंने अहमदाबाद के 5 स्टार होटलों, क्लबों और गली कूचों में बड़ी बड़ी प्रोफेसर टाइप की हिंदू जैनी औरतों को जैन मत के अलिफ नंगे जोगियों के साथ बैठकर उनके मुंह में लड्डू और दही डालते अपनी आंखों से देखा है। मैंने तो मीनाकशी को ऐसा शोभा दिखाया था कि शायद कोई दूसरा जोगी या साधु ऐसा शोभा न दिखा सकता।
وہ میری طرف عقیدت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، گرو جی، آپ نے جو کچھ بتایا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ میں نے آج لال رنگ کا انڈر ویئر پہنا ہوا ہے اور میری نافس کے نیچے 2-3 ہفتوں سے ایک پھوڑے کا ابھار سا نکل آیا ہے۔ میں شرم کے مارے کسی کو نہیں بتاتی۔ آپ واقعی دیوتا شیو جی کے بھگت ہیں۔ پلیز مجھے کچھ اور بھی بتائیے۔ میری نافس کے نیچے جو پھوڑا بن رہا ہے اس کا دیوتا شیو جی سے پوچھ کر کوئی علاج بتائیے۔ آپ تو ڈانس کرتے ہوئے مجھے یہاں درد بھی ہونے لگا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے۔ میناکشی نے کسی قسم کی شرم حیا محسوس کیے بغیر ساڑی کا پلو پرے ہٹایا اور پیٹ پر ساڑی کو ناف سے بھی نیچے تک کھینچ کر لے گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی ناف سے کافی نیچے بائیں جانب ایک سرخی مائل ابھار سا بنا ہوا تھا۔ اس وقت میں ہوائی مخلوق چندریکا کی ہوائی طاقت کا مزید قائل ہو گیا۔ میں نے انگلی سے سرخ ابھار کو چھوا تو میناکشی کے منہ سے ہلکی سی آواز نکلی، جیسے اسے درد محسوس ہوا ہو۔ میں نے کہا، ساڑی اوپر کر لو۔ اس نے جلدی سے ساڑی اوپر کر دی اور عاجزانہ انداز میں کہنے لگی، پلیز اس کا کوئی علاج کر دیں۔ یہ پھوڑا بن گیا تو میں کیا کروں گی؟ میں تو شرم کے مارے جیتے جی مر جاؤں گی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میں دیوتا شیو جی سے باتیں کروں گا، وہ ضرور تمہاری بیماری کا کوئی علاج بتا دیں گے۔ میناکشی کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ساڑی کے پلو سے آنکھیں پونچھتے ہوئے بولی، اگر میں بیمار ہو گئی تو میں بھارت کی مشہور ڈانسر کیسے بن سکوں گی؟ شیو جی مہاراج کو میری طرف سے ہاتھ جوڑ کر کہنا کہ وہ مجھ پر کرپا کر دیں اور مجھے ٹھیک کر دیں۔ میں نے میناکشی کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے جسم سے انتہائی اعلیٰ قسم کے پرفیوم کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ اس کا مزید اعتماد حاصل کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ لگانا بہت ضروری تھا۔ یا آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے اس وقت کسی نفسانی خواہش نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ بہرحال میں بھی جوان تھا، اگرچہ میرا کردار ایک زبردست تربیت یافتہ مسلمان کمانڈو کی حیثیت سے اب تک بے داغ رہا تھا اور مجھے اسے بے داغ ہی رکھنا تھا، لیکن میں جھوٹ بھی نہیں بولوں گا۔ اس وقت میناکشی کو اپنے ساتھ لگانے کی زبردست خواہش میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی اور میں ایک لمحے کے لیے بے بس ہو گیا تھا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، دیوتا شیو جی مہاراج کو میں تمہاری پرارتھنا پہنچا دوں گا اور ان سے تمہاری بیماری کا کوئی علاج، کوئی اپائے بھی ضرور پوچھ لوں گا، تم بے فکر رہو۔ ابھی تک میں نے اسے اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ میں نے اسے الگ کرنا چاہا تو وہ خود مجھ سے لپٹ گئی اور میرے سینے پر سر رکھ کر بولی، میرے گرو دیو مہاراج، مجھے اپنے سے الگ نہ کرنا۔ میں جیون بھر تمہاری سیوا کروں گی، تم جو کہو گے کروں گی۔ میں نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا کیونکہ معاملہ حد سے آگے بڑھنے لگا تھا۔ اسے اپنے آپ سے الگ کیا اور کہا، میناکشی، تمہاری سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ شیو جی مہاراج تمہاری رکشا کریں گے۔ اب وہ اور میں دونوں ہندی میں باتیں کرنے لگے تھے اور ہندی میں ہی بولنے لگے تھے۔ مجھے اچانک یاد آ گیا کہ چندریکا نے میناکشی پر اپنا اثر قائم کرنے کے لیے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ جس رات تم اسے ملنے جاؤ گے اس سے پہلی رات کو میں اس کے خواب میں آؤں گی
اور یہ بات کہوں گی، مجھے چندریکا کی وہ بات بھی یاد آ گئی۔ دوسرے روز اس بات کو ظاہر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے میناکشی کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑے پیار بھرے انداز میں کہا، اور ہاں، میں ایک بات تمہیں کہنی بھول گیا تھا۔ یہ بتاؤ کہ کل رات تمہارے خواب میں درگاہ ماتا آئی تھیں؟ میناکشی کے حلق سے مارے حیرت کے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ بے اختیار ہو کر بولی، میرے گرودیو، تم تو انتریامی ہو، تم کو تو میرے اندر باہر کا، میرے سوتے جاگتے کا سارا حال معلوم ہے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور پریشان ہو کر کہنے لگی، ہاں ہاں، درگامیاں رات میرے خواب میں آئی تھی۔ اس نے ایک ایسی بات مجھے کہی کہ جس سے میں ساری رات پریشان رہی ہوں، اور اسی پریشانی میں میرا سارا دن گھر میں بیٹھی رہی۔ میں نے مسکرا کر کہا، درگاہ ماتا نے یہی کہا تھا نا کہ میناکشی تمہارا اگلا جنم لومڑی کے روپ میں ہوگا۔ فرط عقیدت سے میناکشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے ہونٹ کمپ کپانے لگے۔ بولی، ہاں، درگاہ میاں نے یہی کہا تھا۔ گرو جی، یہ ماتا نے کیوں کہا؟ بھگوان کے واسطے شیو جی سے کہیں کہ میرا اگلا جنم لومڑی کے روپ میں نہ ہو، میں ساری عمر آپ کی ابھاگی رہوں گی۔ میرا یہ تیر بھی ٹھیک نشانے پر بیٹھا تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، شانت رہو میناکشی، تمہارا اگلا جنم لومڑی کے روپ میں نہیں ہوگا۔ میں شیو جی مہاراج سے کہہ کر تمہارے سارے پاپ دھلوا دوں گا۔ میناکشی کرسی سے نیچے اتر کر میرے پاؤں پر گر پڑی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے اوپر اٹھا کر دوبارہ کرسی پر بٹھایا۔ وہ میرے ہاتھوں کو بار بار چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا رہی تھی۔ اس چھوٹے سے کمرے میں اب میری نظر سامنے والی دیوار کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں دیوار میں ایک شیلف بنا ہوا تھا، جس میں ہر قسم کی شراب کی بوتلیں اور شیشے کے قسم کے گلاس پڑے تھے۔ آگے ایک چھوٹا سا کاؤنٹر بھی بنا ہوا تھا۔ سارا حال ڈانس سینٹر کی رینا لینی دیوی نے اونچے طبقے کے عیاش اور مالدار بوڑھوں کی عیاشیوں کا سارا انتظام وہاں کر رکھا تھا۔ ویسے بھارت میں شراب عام تھی اور اونچی سوسائٹی کے تقریباً ہر گھر میں ہر وقت موجود رہتی تھی۔ اتنے میں دروازے پر کسی نے ہلکی سی دستک دی۔ میناکشی جلدی سے مجھ سے الگ ہو کر اپنی ساڑی، بلاؤز اور بال ٹھیک کرنے لگی۔ میں بھی پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے انگریزی میں پوچھا، کون؟ دوسری طرف سے رینا لینی کی آواز آئی، کیا سوامی جی مہاراج اندر ہیں؟ ابھی رینا لینی دیوی نے میرا کوئی شوبدہ نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ میری باتوں سے ہی بے حد متاثر ہو گئی تھی۔ میناکشی نے کہا، آ جائیں اندر میڈم، سوامی مہاراج اندر ہی ہیں۔ اس وقت میناکشی نے میرے آگے اپنا ہاتھ کھول دیا تھا۔ رینا لینی مسکراتی ہوئی ہمارے قریب آ گئی۔ میناکشی نے کہا، میں سوامی جی کو اپنے ہاتھ کی ریکھائیں دکھا رہی تھی۔ رینا لینی دیوی بھی کرسی کھینچ کر میرے قریب آ گئی اور اپنی ہتھیلی کھول کر میرے آگے کرتی ہوئی بولی، پلیز سوامی مہاراج، میرا ہاتھ بھی دیکھیے۔ مجھے خاک بھی ہاتھ کی ریکھائیں دیکھنی نہیں آتی تھیں۔
उस वक्त चंद्रिका भी मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मुझे उसके जिस्म और लिबास से उठने वाली लोबान की खुशबू नहीं आ रही थी। मैंने रीना लेनी को टालते हुए कहा, मैडम, तुम्हारा हाथ फिर कभी देखेंगे। रीना लेनी ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए मीनाकशी से कहा, मीनाकशी, तुम्हारा दोस्त आया हुआ है। फिर हंस पड़ी मीनाकशी ने पूछा, वो चंद्रकांत? मैं चौंकना हो गया। ये वही चंद्रकांत था जिसके बारे में चंद्रिका ने मुझे बताया था कि मीनाकशी उससे नफरत करती है, मगर यूं ही उसे बेवकूफ बनाने के लिए उसके साथ प्यार का खेल खेल रही है। रीना लेनी देवी हंसती हुई बाहर चली गई। मीनाकशी के चेहरे पर चंद्रकांत का नाम सुनकर नागवारी के जो तसरात उभरे थे वो अभी तक बरकरार थे। मैंने उसे पूछा, मीनाकशी, अगर तुम चंद्रकांत से नफरत करती हो तो फिर उसके साथ झूठी मोहब्बत का इजहार क्यों करती हो? मीनाकशी आखिर फैशनेबल मॉडर्न तबके की लड़की थी और उसमें ऊंची सोसाइटी की तकरीबन सभी खामियां मौजूद थीं। मुझसे भी असल हकीकत छुपाने लगी। बोली, नहीं स्वामी जी, मैं उससे नफरत नहीं करती, बस वो मुझे पसंद नहीं है। मैंने उसका एक और खुफिया राज तश्ते अज़बाम करते हुए कहा, अगर तुम उससे नफरत नहीं करती हो तुमने अपनी जो एक खुफिया डायरी बना रखी है उसमें ये क्यों लिखा था कि मैं चंद्रकांत से नफरत करती हूँ और उसके साथ प्रेम का ड्रामा कर रही हूँ? मीनाकशी पर हैरत का एक और हमला हुआ। वो आंखें खोले मेरा मुंह तकती रह गई। मैं मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, मुझे तो ये भी मालूम है कि तुमने अपनी खुफिया डायरी का नाम प्रेम ग्रंथ रखा हुआ है। आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि जिस इंसान के इतने खुफिया राज मैं खोलकर उसके आगे बयान कर दूंगा तो क्या वो मेरा मती और मेरा मुरीद नहीं हो जाएगा? मीनाकशी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो एक बार फिर मेरे कदमों पर गिर पड़ी। मैं उसे उठाने लगा। वो मुझसे लपट गई। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अपने आप से अलग किया और कहा, चलो दूसरे कमरे में चलो, लोग क्या कहेंगे। मीनाकशी ने अंग्रेजी में कहा, मैं लोगों की क्या परवाह करती हूँ, मेरे स्वामी जी, मेरे गुरुदेव मेरे साथ बैठे हैं, उससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की और क्या बात होगी। मगर मैं उसे अपने साथ दूसरे कमरे यानी हाल कमरे में ले आया। वहां लड़कियां रक्स के तोड़ों पर पांव थिरका रही थीं। सोफे पर रीना लेनी के साथ एक मोटी तोंद वाला नौजवान बैठा था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, मगर पेट ज्यादा उम्र के आदमियों की तरह बाहर निकला हुआ था। मीनाकशी ने आहिस्ता से कहा, यही कमबख्त चंद्रकांत है। मैं रीना लेनी के पास जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने चंद्रकांत के साथ भी मेरा बड़े जबरदस्त अल्फाज में तारुफ कराया और उसे बताया कि मैं जैन मत का बहुत बड़ा वरदान हूँ और स्वामी महावीर वर्धना का भगत हूँ और अमेरिका में फिर 7 साल पढ़ता रहा हूँ। मेरे अमेरिका में 6-7 वर्ष तक पढ़ने वाली बात ने चंद्रकांत को ज्यादा मुतासिर किया। वो मुझसे अमेरिका के बारे में बातें पूछने लगा।
मालूम होता था कि पहली फ्लाइट में अमेरिका जाकर किसी कॉलेज में दाखिल हो जाना चाहता है, मगर उसे वीज़ा नहीं मिल रहा था। फिर उसने मीनाकशी की तरफ देखा और कहा, मीना जी, मैं तो आधे घंटे से तुम्हारे इंतजार में यहाँ बैठा हूँ। तुम स्वामी जी को अंदर हाथ दिखा रही थी, मीनाकशी ने तंग आकर कहा। तो मैं क्या करूं, फिर मुझे बताकर आए थे। चंद्रकांत खामोश हो गया। लगता था कि उसे इस बात का ताज्जुब हो रहा था कि आज अचानक मीनाकशी इतनी बेरुखी क्यों दिखा रही है। कुछ देर देवी रीनालेनी के पास बैठे रहने के बाद मैं जाने लगा तो मीनाकशी भी जल्दी से उठ खड़ी हुई कहने लगी, स्वामी जी, मैं आपको आपके होटल ड्रॉप कर दूंगी। मैं उसके साथ साराबाई डांस सेंटर से बाहर आ गया। बाहर उसकी कीमती गाड़ी एक तरफ खड़ी थी। ये गाड़ी उसके बाप और रा के चीफ और मेरे टारगेट जीडी पांडे की थी। मैं खुद भी यही चाहता था कि मीनाकशी मुझे छोड़ने मेरे होटल तक आए, क्योंकि मैंने अपने कमांडो स्पाइंग मिशन का पहला मरहला पूरा कर दिया था और अब मुझे अपने असल टारगेट यानी मीनाकशी के बाप तक रसाई हासिल करनी थी। उसका भरपूर एतमाद हासिल करना था और उसके लिए मीनाकशी से बात करनी और उसे इस्तेमाल में लाना बहुत ज़रूरी था। मीनाकशी मेरी ज़बरदस्त मती हो चुकी थी। अब मैं चाहता था कि अतात गुजारी और अकीदत का यही जज्बा उसके बाप जीडी पांडे के अंदर भी बेदार करूं और उसके बाद रा के अहमदाबाद वाले हेड ऑफिस की सीक्रेट सेक्रेटरीट मिलिट्री सर्विस की फाइलों के खुफिया राज अपने कब्जे में करना शुरू कर दूं। यही मेरा असल मिशन था। गाड़ी मीनाकशी खुद ड्राइव कर रही थी। शहर की कुशादा सड़कों पर खूब रोशनी हो रही थी। दूर नजदीक शहर की ऊंची नीची इमारतों में भी रोशनियां झलमिला रही थीं। मीनाकशी अगर अपने बाप से मेरा तारुफ एक पहुंचे हुए जैनी भगत के रूप में करवाती है तो उसका उसके बाप पर इतना असर नहीं पड़ सकता था जितना असर इस तरह पड़ता कि अगर मुझे मीनाकशी के बाप की भी दो एक खुफिया बातें मालूम होती। इस बारे में सिर्फ चंद्रिका ही मेरी मदद कर सकती थी। गाड़ी ट्राइडेंट होटल के अहाते में दाखिल हुई तो मीनाकशी ने कहा, स्वामी जी, तुम मेरे साथ मेरे बंगले पर क्यों नहीं चलते? खाना हमारे साथ खाना, मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलाऊंगी। वो भी बड़े जैनी भगत हैं। मैंने कहा, मैं उसकी जरूरत नहीं समझता मीनाकशी, तुम्हारे पास तो मैं खुद चलकर आया था और सिर्फ इसलिए कि शेफ जी ने मुझे ख्वाब में तुम्हारी शक्ल दिखा दी थी और तुम्हारे बारे में सारी राज की बातें बता दी थी और तुम्हारी मुश्किल ख्वाब में देखकर ही तुम मुझे अच्छी लगने लगी थी। तुम्हारे साथ तो प्रेम मोहब्बत वाला मामला है। तुम्हारे पिताजी से मिलकर मैं क्या करूंगा? तुम घर जाओ। मीनाकशी गाड़ी में से मेरे साथ ही बाहर निकल आई। कहने लगी, स्वामी जी, मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ जाऊंगी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।